Okay, so good evening everyone. We are going to start with this lab experiment. I just hope all of you have seen that sample lab file which I shared with you. So you have to make regular entries into that lab file because I have shared a doc file with you. This is the lab report. So you have to type your name, roll number and group and these things. So in this table of contents, this is the 3 experiments we have already done. So you just keep on inserting the entries every week. So like today we are going to do epidemic model, numerical, solution, and specifically we are going to do the SIR one. And you can put the date of today. So I'm doing it to show you, otherwise you have to do this every time in your respective files. And the moment you begin from the next page, so here I have left the space output of experiment 1. So if the experiment output is taking more pages, more number of pages, so you can insert pages because it's a Word file, you can do the editing. So and similarly for every experiment, you create the output page. So like for experiment 3, I have written up to here, this page, the information. For experiment 4, I'll upload it by today or by tomorrow. So from there you extract the Word page and add or copy paste it from there and copy it here in the main file. So I'll keep giving you this information every week, the formal statement, right? So you keep on editing that way. Right now, so we are going to start with our lecture. So what we discussed in the morning. So you can ask first of all if you have any doubt what we discussed in today's morning lecture. When you were explaining pandemic, you said that it should be for a large area. So it can be a large area or it has to be multi continent. Like if we take for Asia, like अगर China में and Russia वगैरह में होता है, so will we consider it as a pandemic? See, that's what I said. ये वो हमारी कंसिडरेशन पे नहीं डिपेंड करता है. ये मैसिव स्केल पे जब कोई चीज हो जाती है तो the World Health Organization has the authority to declare it as that way. But yes, if it happens over a massive scale, then yeah, it should be called a pandemic. It spreads from more than 1 to 2 countries, provided वो कुछ regional disease नहीं है. It's actually an epidemic, so it should be called a pandemic then. But वो decide WHO ही करते हैं. वो definitions time to time revise भी करते रहते हैं कि ऐसे है. So that's why I said it's according to the recent version of the definition. This is what we have. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I have some doubt. Like, ma'am, what are ordinary differential equations, ma'am? मैम मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ऑर्डिनरी क्यों हम बोल रहे हैं. मतलब आपने कहा था ना सुबह यूलर मेथड एंड रंगे-कुप्ता मेथड जब वो रीड करना था मैम, उसके ऊपर लिखा था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इंस्टेड ऑफ नॉन लीनियर. तो मैम ये क्या सीन था मैम? अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. सी वी हैव differential equation is a general term we have. So we know differential equation is any equation in which we have some function. Function means we have a dependent variable and then we have a independent variable. And then the connection between them is the derivative. Yes, so ma'am. we have a dependent variable y, independent variable say x, and the derivative is y dash. Yes, say ma'am.
बिकॉज एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो y की वेरिएशन सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो सपोज आपका जो x है वो है स्पेस, तो इसमें जो डेरिवेटिव्स आएंगे वो y डैश y डबल डैश ये है। तो इनका एक्चुअल मीनिंग है y डैश इज dy by dx, दिस इज d2y by dx। तो ये सारे फर्स्ट ऑर्डर सॉरी ये सारे और इनको डेरिवेटिव बोला जाता है, और फुल डेरिवेटिव भी बोला जाता है, बिकॉज वो फुली एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, y की वेरिएशन जो है। बट सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो अब मैं पूछूं y कैसे वेरी कर रहा है, तो यू शुड बी आस्किंग मी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। आप विद रिस्पेक्ट टू स्पेस उसकी वेरिएशन पूछ रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेरिएशन पूछ रहे हो। तो with respect to space we have this del y by del x will be one derivative, and with respect to time we have another derivative del y by del t। so इनको हम partial derivatives बोलते हैं, because ये रेट ऑफ चेंज बताते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं। तो जब भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं तो हमारे डेरिवेटिव्स उस केस में पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अब अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में फुल डेरिवेटिव्स हैं तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और जब पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यू कैन से कि पार्शियल इंक्लूड किया है तो पीडी बन गया। अब अगर उसको सिर्फ डीई बोलेंगे, मतलब ओ ऑर्डिनरी का मतलब अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो वो कंफ्यूजन होगा ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब कौन सा है, तो पार्शियल है या फिर ऑर्डिनरी है, विदाउट पार्शियल है, फुल है। सो दैट्स जस्ट नॉमेनक्लेचर, दैट हैज नथिंग टू डू विद लिनियरिटी एंड नॉन लिनियरिटी। वो बात की बात है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बट पहले ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ओडी क्या होता है और पीडी क्या होता है। उसके बाद अब हमारा ओडी ही है, बिकॉज यू नो हमारे ये जो एस आई आर है या हमारे जो पॉपुलेशन मॉडल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, पी था, तो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ एक ही हम वेरिएबल ले रहे हैं, टाइम पे डिपेंडेंसी, हम स्पेस पे वेरिएबिलिटी उनकी देख ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए उनके डेरिवेटिव्स सारे जो हैं वो फुल डेरिवेटिव्स हैं। तो इसीलिए जो भी इनसे इक्वेशन बनेगी वो सारी ओडी बनेगी, राइट। अब पॉपुलेशन मॉडल में सिर्फ एक ही इक्वेशन होती थी, तो समथिंग व्हाटएवर इट इज। अब वो फंक्शन लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर, वो बात की बात है, फिर हम उसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, बट रहेगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही। लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी उसका एक नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन है। इज दैट क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। या तो अभी हम मॉडल पे आते हैं। सो वी हैव दिस मॉडल ds by dt, and we have di by dt, and then we have the dr by dt. So ds by dt is minus beta s I by n. The I by dt is beta s I by n minus gamma I, and this is gamma I. तो ये हमारा मॉडल है, and obviously it came with the initial condition. आप इसको t नॉट लिखना चाहते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको 0 टाइम से डिनोट कर रहे हैं। देन वी हैव I at 0 is I naught and R at 0 is R naught. So this is our complete model, because it has all that information, necessary all information is there which is required to find its solution. तो अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे, बिकॉज हम इसको एनालिटिकली इसका मैनुअली सॉल्व करके कोई टेक्निक लगा के जैसे वेरिएबल सेपरेबल या जो टेक्निक्स होती हैं और ओडी को सॉल्व करने के लिए वो नहीं लगा सकते, बिकॉज इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो एस को सॉल्व करने के लिए लगाओगे तो उसमें आई अननोन रहेगा, आई को सॉल्व करने के लिए लगाओगे सो उसमें भी एस रहेगा। सो बिकॉज ऑफ कपल्ड नेचर इट्स डिफिकल्ट टू सॉल्व एनालिटिकली, सो वी नीड न्यूमेरिकल टेक्निक टू डू दैट। तो देन फिर मैंने आपसे पूछा था कि हमारे पास जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक्स है। देखो पीडी की आपने नहीं पढ़ी है टेक्निक्स, इस पे भी आएंगे, हम एक पीडी मॉडल भी करेंगे अपने सिलेबस में। तो आप लोगों ने अपने अभी तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
नहीं पढ़ा है एज सच, जितना आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, और पीडी को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की भी टेक्निक्स आपने नहीं पढ़ी है. सो दैट आल्सो यू विल लर्न इन दिस कोर्स. आई विल टेल यू अबाउट दैट जब ये एक मॉडल आएगा हमारे पास. बट अभी तक हमारे पास ओडीई मॉडल ही चल रहे हैं. जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल था उसमें हमें न्यूमेरिकल टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन निकाल लिए थे. तो इसलिए मैटलैब में हमने सीधा उनका सॉल्यूशन लिख दिया, उसको प्लॉट कर लिया, राइट. तो दैट वाज काइंड ऑफ नो न्यूमेरिकल टेक्निक वाज यूज्ड. हम सिर्फ प्लॉट करके कंपेयर कर रहे थे. बट ये है, इसके हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, हमें न्यूमेरिकली पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर प्लॉटिंग करेंगे. तो उसके लिए we need to know the numerical techniques we have. So we have the Euler's technique, we have the Picard's method, we have the Taylor series method. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट ऑब्वियसली हम एक ही यूज करेंगे, रंगे-कुटा मेथड, बिकॉज दिस इज प्रूवन टू बी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स. इसका फर्स्ट ऑर्डर होता है, Euler's मॉडिफाइड का 2 ऑर्डर होता है, पिकार्ड्स में ऑर्डर हम वेरिएशन कर सकते हैं, टेलर्स का भी ऑर्डर वेरिएशन कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज easy for this one. तो हम R के 4th मेथड जो है यूज करेंगे. तो उसके प्रिसीजन में कोई डाउट नहीं है. जैसा नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है. देयर इज नो न्यूमेरिकल टेक्निक which gives 100% accurate result, because it always gives you an approximate result. But the more least the error, the higher the order of the method, the better answer we have, the better accuracy we have. So now we are going to start with this one, that what this RK method is. Okay, so anybody आप पढ़ के आए हो? मैंने बोला था इसका थोड़ा रिवाइज करके आना. करते क्या है इस टेक्निक में? हम पढ़ा है आप लोगों ने? हम इसके अंदर हमारे 4 केव के फंक्शंस हम बना लेते हैं, फिर उनको सॉल्व कर करके हम वैल्यूज चेक करते हैं. हाँ, तो फर्स्टली देखो इसके 2 वर्जन्स हैं आरके फोर्थ ऑर्डर मेथड के. फर्स्ट वर्जन इज जो ओरिजिनल वर्जन है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बना है कि लाइक यू हैव एनी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक dy by dt is f, right? So you have a function ft by. So ये हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं कि इन जनरल जहाँ पे यहाँ पे जो फंक्शन होता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ बोथ. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी a function of time as well as the dependent as well as the independent variable. तो we expect कि इसमें दोनों variables आएंगे. वो हो सकता है हम पर्टिकुलर हमारे मॉडल में एक वेरिएबल ना हो, बट दैट्स ओके. हम जनरल उसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वी कैन चेंज इट. तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास IVP जो गिवन होती है, सो आर के मेथड उसके लिए अप्लाई होता है. सो इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द टेक्निक, yes, so we have to evaluate 4 constants in this, k1 k2 k3 k4. Yeah, so basically टेक्निक है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे अप्लाई हो रही है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मींस अब आपके डोमेन टाइम डोमेन है, ये आपके टाइम डोमेन है. सो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सम टाइम t इक्वल्स टू 0. इस टाइम पे आपके पास वैल्यू पता है आपको y0. इनिशियल कंडीशन इज गिवन टू यू. मुझे बाकी फ्यूचर में उसकी वैल्यू चाहिए, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज द चेंज. चेंज मीन्स ये टाइम के साथ कैसे बदल रहा है. तो जो मुझे सॉल्व करूंगी, बाय सॉल्यूशन आई मीन आई नीड टू नो इट्स वैल्यू at all the times. अब जैसे आप पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल को सॉल्व किया था, तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये था. So this was giving you the value of population at all the times, right? So this can give you the value at all the times. You can see अब जो भी वैल्यू t के इसमें डालोगे, t equals to p naught e raised to power rt में, you will get the answer, because here solution you are getting explicitly as a function of time. That's the benefit of analytic solution getting in the closed form. इनको closed form solution भी बोला जाता है. बट क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा था कोई आंसर निकल के आएगा नहीं यहाँ पे कि s की वैल्यू आ जाएगी, i की वैल्यू और r की वैल्यू एज अ फंक्शन दिखेंगे हमें. वो नहीं होता है, हमें इंडिविजुअली उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पता चलेंगी. तो व्हाट वी कैन डू, हमें टाइम को डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज जब भी हम कंप्यूटर्स में सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू डिफाइन अ स्टेप साइज ऑफ अवर डोमेन कि अच्छा 0 पे पता है, उसके बाद मुझे कितने पे पता होना चाहिए. आई नीड टू नो एट 0.01, 0.02. सो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली आई विल फिक्स सम फाइनल टाइम कि सपोज मुझे 100 स्टेप्स जाना है, या 100 इज द यूनिट ऑफ द टाइम, व्हाटएवर इट इज, डे और मंथ, व्हाटएवर इट इज. तो फर्स्टली हम इंटरवल का, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल वैल्यू तो हम 0 ही ले रहे हैं,
उसको t इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो। सो ये जब मैटलैब में करेंगे वहां पे आप इंडेक्सिंग वगैरह देखोगे, बिकॉज मैटलैब में 0 इंडेक्स नहीं चलता है, सो दैट थिंग कैन बी सीन देयर। बट द रफ आइडिया इज कि आप इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में इंटरवल बनाते हो, सब इंटरवल्स बनाते हो बाय डिफाइनिंग सम स्पेसिंग। तो इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स हम बनाते हैं, तो इक्वल स्पेसिंग उसको हम h से डिनोट करते हैं, राइट। सो h बीइंग योर स्टेप साइज। तो ऑब्वियसली h जितना मतलब h बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और h बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। सो what you need to do is choose a particular optimal value of h so that your program, अगर बहुत ज्यादा छोटा ले लोगे तो computational time बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, accuracy better होगी, और बहुत ज्यादा बड़ा ले लोगे तो accuracy जो है poor होगी। So we have to kind of do an experiment to select a good value of h. So h is an involved parameter when you are trying to solve it numerically. So can anybody tell me the formula of this? K1, K2, K3, K4? Yes, ma'am. 1 minute. मैम k1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन जो भी डेरिवेटिव है। Excellent. Yeah, so this is K1 is, I'm writing this formula, you can recall it. So it's h times f. तो ये t नॉट से स्टार्ट करते हैं। t नॉट मीन्स जो भी जीरो भी हो सकता है, बट हम जनरल लिखेंगे तो उसको t नॉट। सो t नॉट, हाँ मीन्स उसको फिर जनरलाइज कर देंगे, बट इन जनरल हम उसको t नॉट से बोल रहे हैं। तो t नॉट एंड देन व्हाट इज देयर, द अदर वेरिएबल इज y नॉट, इनिशियल वैल्यू। देन अब हमें इंक्रीमेंट डालने हैं, सो t नॉट प्लस h by 2, y नॉट प्लस k1 by 2. Then you have again t naught plus h by 2, y naught plus k2 by 2. And this is t naught plus h, y naught plus k3. लास्ट वाले में हम पूरा दे देते हैं, उसका सब डिविजन नहीं करते हैं, क्योंकि t नॉट से t नॉट प्लस h पे जाने के लिए बीच में हमने दो एक्चुअली स्लोप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आप इसका समझना चाहते हो तो ओके, विल नॉट डिस्कस दैट। तो वंस यू गेट दीज k1, k2, k3, k4, उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास y1। y1 मीन्स y एट t1। अब हम नेक्स्ट, सपोज ये t नॉट था, अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे y पता चल गया है y1, so the formula says y naught plus 1 by 6. So basically that's a weighted average of all these. So it's k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 by 6. तो you just repeat this. अब आपका y1 हो गया है, अब y1 से नेक्स्ट पे जाना है y2 पे, so the same sort of formulas will appear. तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप इसको जनरल सेंस में लिखोगे, so you know this will be say ti yi, अगर आप ith iteration इसकी देखना चाहते हो, and this will be I plus h by 2 and so on. So you can do that. तो आपका 0 जो है वो I बन जाएगा और 1 जो है आपका I plus 1 बन जाएगा, and then I will be obviously running from some loop from 1 to, because running index आपका, so I equals to 1 will be signifying t equals to 0. So 1 से लेकर n तक, n is your number of intervals or the number of steps. तो वो आप प्री डिफाइन करोगे कि आपको कितने स्टेप्स जाना है। ये हम ऊपर बता देंगे कि हमें कितने स्टेप्स में इसकी कैलकुलेशन करानी है। वो आप किसी भी टाइम वेरी कर सकते हो। आप सॉल्यूशन को ज्यादा टाइम के लिए देखना चाहते हो, आप ये बढ़ा दो, यू विल सी इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपको कम टाइम के लिए प्लॉट करना है, इसको कम कर दो, बट इट हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट लुकिंग इट एज अ रियल टाइम, इट्स जस्ट डिनोटिंग टाइम स्टेप. So it's 1, 2, 3 and so on. So this is an integer value. So this is a basic idea of RK method, which is for one equation. But then you know there exists a generalization for a system of equations, because हमने जो अप्लाई करना है वो एक इक्वेशन नहीं है, वो तीन इक्वेशन हैं। तीनों पे इंडिपेंडेंट आरके नहीं लगेगा, क्योंकि ये कपल्ड सिस्टम है, हम तीनों को अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो इट हैज टू बी coupled, and therefore it has to be the RK method also be applied in the sense for system of equations, higher order. Yeah, so if you remember
आपको जब ये पढ़ाया जाता है तो हम बताते हैं कि अच्छा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पे लगा के दिखाओ, तो सेकंड ऑर्डर कुछ भी होता है, देन व्हाट वी डू, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. We put, suppose this is f, we put dy by dx is z, so this gives you d2y by dx2 is dz by dx. तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बन जाती है, और दूसरी इक्वेशन जब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो बन जाती है dz by dx is f. So means you have two system of equations. So similarly आप इसको थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी लगा सकते हो. माइंडेड, इसमें हम लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी फंक्शन हो, क्योंकि उसको सिर्फ कंप्यूट कराना है, तो सिर्फ हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं. as whatever be the order of equation you can apply it by breaking it down to a system of first order equations. अब जो हमारे पास मेथड ये है SIR मॉडल है, it's already kind of broken down into 3 independent equations. तो उसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी बीन रिटन लाइक दैट, बस हमें इसको कंप्यूट कराना है. या सो विल यू बी टेलिंग मी, सो लेट मी जस्ट राइट दिस. सो दिस इज ds by dt, वी हैव फर्स्ट फंक्शन, इसको सपोज हम f बोल देते हैं, राइट. तो f बी अ फंक्शन ऑफ, अब आपके कितने वेरिएबल्स हैं सिस्टम में टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू हैव? Yes? Only S, I and N. नहीं, इसको मत देखो, पूरा सिस्टम देखो ना, ये पूरा SIR वाला जो मॉडल है. So you have 3 unknowns S, I and R. See, ये कंडीशन भी है, इसको भी हमें यूज करना है. N is basically not the unknown. N तो हम फिक्स कर देंगे कि कितनी पॉपुलेशन के लिए हम ये सिमुलेशन कर रहे हैं, पॉपुलेशन का साइज हम बता देंगे उनको, तो n फिक्स ही रहने वाला है बेसिकली. बट एक्चुअली n वैसे भी अननोन नहीं होता है, इट इज ऑलवेज s plus i plus r. सो आपके 3 ही अननोन्स हैं, s, i and r, बट एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, राइट. सो you have 4 variables, 1 independent variable and 3 dependent variables. so आपका जो फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये जो फंक्शन होता है जनरल फॉर्म में, see what I am trying to do, will try to make a general code rather than will not be very specific कि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. let our code be general. जैसे जब हम ये फॉर्मूलाज लिख देते हैं सपोज आर के मेथड का किसी कोड में, तो इट्स अ जनरल कोड. अब आपको बस f बताना है उसको, उसके अकॉर्डिंग ये निकाल लेगा, राइट. उसमें t है या नहीं है, उस फंक्शन में हो सकता है टाइम पे डिपेंडेंसी ना हो, बट आपका कोड जनरल है, बट स्टिल इट विल अज्यूम, so means still it will work very fine. So same is here. Sometimes students have doubt कि इसमें टाइम तो है ही नहीं, किसी भी फंक्शन में टाइम पे डिपेंडेंसी एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम का पैरामीटर ही क्यों ले रहे हैं. इट्स फाइन, यू कैन ड्रॉप दैट. आप टाइम का पैरामीटर नहीं लेना चाहते हो क्योंकि एक्चुअल में उस फंक्शन में टाइम की डिपेंडेंसी नहीं है. बट if you want to make a general code, I would say, so you just treat it as a function of 4 variables, t, s, i and n. हालांकि हमें दिख रहा है कि वहाँ t की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो t एज अ आर्गुमेंट t देने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि t कुछ भी हो इसकी वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. बट यू आर मेकिंग अ जनरल प्रोग्राम, सो लेट इट बी अ फंक्शन ऑफ t. हो सकता है कल को कोई और मॉडल आ जाए उसमें यहाँ पे t पे डिपेंडेंसी हो सकता है वो SIR नहीं हो के कोई और मॉडल हो, so you should make the general code, I would suggest that. So better you take it as a function of 4 variables in general, ds by dt, and call it say f1. This is your first function, and then you have the second equation di by yes Ma'am, but the 4 unknowns here are S, I, R and T. Then why are we taking N instead of R? I'm sorry, I just wrote it by mistake. It's R actually. Yeah, thank you. ये R ही है, T S I N R. Di by dt is beta Si by n minus gamma I, so call it F2. T S I and R, and the third equation is dr by dt, which is gamma I. तो अब यहाँ पे भी देखो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ I की ही जरूरत है बेसिकली. यहाँ पे तो ये कि गामा तो फिक्स कर देंगे, हम वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे वो T, S और R की भी जरूरत नहीं है. तो आप अगर स्पेसिफिक बनाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग
that आप इसको generally बनाओ. So take it as a function of all the variables. TSIM, क्योंकि कल को कोई भी change होता है, functions में change होगा, your code is not going to be affected. अगर आप specific बनाते हो, अब बाद में इसमें s की कोई term आ गई, तो then you have to change the program. So that's the way. आपको तीनों को as a 3 functions ले लोगे और तीनों की initial condition हमें पता है, S0, I0 and R0. और T की T0 है, T0 को आप numerically 0 डाल सकते हो when you will be executing the program. तो ये आपकी initial conditions आएंगे, इनकी तो आप value specify कर दोगे input parameters में. These are your initial conditions. देना क्या है हमें, कोड को देना क्या है, means whatever the parameters available are, so we have to supply the value of initial conditions, we have to supply the values of beta and gamma. Beta gamma हमें define करने पड़ेंगे क्योंकि they will be controlling the dynamics, and then we'll write a code for RK method for system of equations, and we also have to give the n, which is the number of I'm denoting it by small n because capital N is the population. So capital N is the population. So like हम 1000 ले लेंगे, इसको assume कर लेंगे, कुछ भी आप later on you can change the parameters and do the experiment. I'll give you a specific problem to work on. And small n be the number of time steps. So we are not interested in आपका time का unit क्या है, it's just a number. हम उसको क्योंकि उसको discrete sense में run करने के लिए हमें सिर्फ number of time steps ही देना है. So you just need to give this. So these are your input things. I'll be giving you these values जिस problem के लिए हमें काम करना है, और उसके बाद you have to write a code for it, RK method. Like, so how many constants will be evaluated here? So you will have, let me write here. So आपके पास K1, K2, K3, K4. ये S की कैलकुलेशन के लिए चलेंगे. I के लिए भी 4 कांस्टेंट्स होंगे. So let them be L1, L2, L3 and L4. And R के लिए let it be M1, M2, M3, M4. आप कुछ भी नोटेशन लिख सकते हो, मैंने KLM यूज किया है because individually सभी के लिए we have to evaluate this, and then S at I plus 1 is SI plus 1/6, K1 plus K2 वही जो फॉर्मूला है 2K2 plus 2K3 plus K4. I के लिए भी I at I plus 1 सिमिलर फॉर्मूला, बट उसमें L आएंगे आर्गुमेंट्स, और R के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला, बट उसमें M आएंगे. So ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा. Now you just need to write their expressions. ये K1, L1, M1 के expressions क्या होंगे, right? That you need to tell me. ये उसके बाद ज्यादा काम नहीं रह जाएगा, आपको सिर्फ कोड में लिखना ही है उसको. So system of equations के लिए क्या hierarchy रहता है? Yeah, so anybody can tell me. K1 तो वही है हमारा H फंक्शन. अब ये फंक्शन F1 है, इसका फंक्शन F1 है, इसका फंक्शन F2 है, और इसका फंक्शन F3 है. So this is we know that Pi, and then we have SI, because पहले में हमें कुछ प्लस नहीं करना होता है. यहाँ पे we have the same expression will be there, it's just F1 नहीं evaluate होगा, F2 होगा. arguments same रहेंगे उसके, Ti, Si, Ii, Ri, and similarly for M1, F3. आप लोगों ने किया हुआ है ये? Is it clear? ये किया हुआ है आप लोगों ने उसमें system of equations के लिए जब हम RK मेथड लगाते हैं, तो हमें parallelly इनको लगाना पड़ता है. What will be the expression of K2? Yes. H of F1 Ti plus H by 2 plus Yi plus K1 by 2. हाँ, मतलब Yi नहीं है ना, यहाँ पे तीनों का बताना पड़ेगा आपको. Si, I, Ri. मैम SI plus K1 by 2, I1 II plus H by 2 and Ri plus H by 2, I guess. नहीं, II plus L1 by 2. इसमें उसका L1 by 2, sorry, yes ma'am. Yeah. And R1
R1 में RI plus M1/2। हाँ, so that's why ये ऐसे ही यहीं पे बस वो शो होता है कि आप उसको कपल्ड वे में लगा रहे हो। तो इनका ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन इज K1 देन L1 देन M1। जब K1 L1 M1 कंप्यूट हो जाएंगे फिर K2 कंप्यूट होगा, बिकॉज इन K2 यू नीड K1 L1 एंड M1, राइट। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि K1 K2 K3 K4 लिख दिए फिर L1 L2 L3 L4 फिर M1 M2 M3 M4, बिकॉज दैट विल गिव यू एरर। कई बार वो एरर नहीं देता है, डिफॉल्ट कई बार वैल्यू नहीं होती है तो वो उसकी प्रीवियस वैल्यू ले लेता है या जीरो ले लेता है। तो समटाइम्स यू मे नॉट इवन नो कि आपका कोड क्यों गलत आंसर दे रहा है। तो द हायरार्की हैज टू बी K1 L1 M1 देन K2 L2 M2। सिमिलरली L2 का भी ये एक्सप्रेशन होगा जो K2 का है, बस फंक्शन F1 की बजाय F2 होगा उसमें। M2 का भी वही एक्सप्रेशन होगा, बस F2 की बजाय F3 होगा। तो आर्गुमेंट्स वही रहते हैं फंक्शन के जो आपने ये यहाँ पे डिफाइन किए हैं, एंड देन इट कीप्स ऑन डूइंग लाइक दैट। तो बस इसके बाद फिर K3 then L3 then M3, K4 then L4 M4, and then you get these expressions. So all these 15 equations you can see. Yeah, so we have the 15 equations, 15 है ना ये, हाँ 15 equations you have to write in the for loop, and that loop should be executed for say 100 times, जितना भी आप number of steps उसको दोगे, and done। उसके बाद आपके पास, क्योंकि आप इनको इंडेक्स दे रहे हो, s को इंडेक्स दे दिया ना आपने, तो वो 100 एक वेक्टर में स्टोर करेगा, हम ओवरराइट नहीं करा रहे हैं। K1 K2 K3 K4 को मैंने इंडेक्सिंग नहीं दिया है, मींस आई एम नॉट कॉलिंग देम K1 I और K2 I, बिकॉज ith आइट्रेशन पे K1 K2 K3 K4 क्या है मुझे उनको स्टोर नहीं कराना है। I don't need to store them, I can just override them। तो therefore उनको इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं है। I just need to give the index to s, जो values मुझे चाहिए, because I need to compute s, I and r at all the time steps in between। Is that clear? So you start writing the program, meanwhile I'll give you the particular example जिसका data और वो values मैं आपको दे रही हूँ। You just start writing it and solve it। मैं बताती हूँ आपको पैरामीटर्स की वैल्यू अभी। Let me just get the problem। Okay, I'll be not sharing with you the file because मैंने अभी उसको compile नहीं किया। मैं यहीं पे आपको parameters की value बता देती हूँ। अब बाद में उसका जो experiment का proper statement और वो है that I'll share with you on LMS, वहाँ से देख लेना, but अभी मैं वहाँ से आपको सिर्फ values बता रही हूँ। So you have the input parameters जो आपको देने हैं, small n भी ये हम vary कर लेंगे, से हम 100 days के लिए देखना चाहते हैं उसको। Let me just see the exact number which they're asking for। वो later on हम उसको extend कर सकते हैं। Let me just see the value 0.3 0.1। Yeah। So 100 500 जो भी जितना days आप उसको plot करना चाहते हो। So this is the number of days or number of, I should say better, the time steps। Capital N population size is 1000, so that's your population count।
Then you need the initial condition, S naught be 900 and I naught be 100, R naught be 0. हम एक बार ये फिक्स कर रहे हैं, इसके बाद you keep on experimenting with this. That the B part of this program is going to be that you change the initial conditions and then see the dependency. कि कुछ फर्क पड़ेगा initial conditions को change करने से कि नहीं पड़ेगा. So R naught is the initial recovered people. So 1000 को मैंने दो parts में divide कर दिया है. 900 susceptible and suppose 100 people are infected and recovered obviously 0 because I have to actually satisfy the S plus I plus R is equal to 1000, the capital N. So accordingly I have given the initial conditions. And then what else? Yeah, beta and gamma हमारे जो rates of transmission of infection है. So beta you take 0.3, gamma you take 0.1. Later on हम इनका भी effect जो है study कर सकते हैं, that how variation of these beta and gamma is going to create the changes. But for the time being आप सबसे पहले इसका code बनाओ, ये input करा के और write the program और functions आपको पता ही हैं. I can rewrite that for you. ds by dt, the model is minus beta si by n. di by dt, तो यहाँ पे n जो होगा वो s plus I plus r होगा, right? So क्योंकि n okay, so you see that yourself. मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी. You see that yourself कि ये n को कैसे tackle करना है. But उसको as a unknown नहीं लेना है बस. That's what I'm telling you. Right? So this is your model. Initial conditions is given, population is given, number of time steps is given. Spacing you need h, step size तो 0.05 ले लो या 0.1 ले लो. एक बार किसी से भी try कर लो. So take it 0.1. So then we'll see. क्योंकि actually ये numerical stability से भी connected होता है. Not every value of h works. So because हमने कोई theoretically analyze नहीं किया है कि इस तरह के सिस्टम के लिए क्या h लेना चाहिए. It's just purely by hit and trial हम ले रहे हैं. So you just try with 0.1. Okay, so do this, and in between if you have any doubts you can ask me. प्लॉट भी कराना है इनको. आपके पास जो SIR आ जाएंगे, I need to plot them with respect to time obviously. So plot S, I and R versus time all in one figure. ये एक फिगर में आपको प्लॉट करानी है सारी कर्व्स. ऑब्वियसली प्लॉटिंग की तो कमांड ही देनी है, पहले आपको कंप्यूट कराना है.